A very warm good afternoon to one and all present over here. I'm Rana Tejashri, your host for the next 1 hour, and welcome to the in-house training of this session. And my topic is stress management. So before moving with the slide, it is truly said that it's not the stress that kills us, it's our reaction to it. Now moving ahead with the slides, these are the contents which we are going to discuss in our upcoming session. Now, the question, what is stress? Actually, it is a very complex phenomenon, you can say, but in a very simple manner, if you want to define it, it is the wear and tear of your daily life. That is only a stress. The thing is, we are trying to engage ourselves, we are trying to get indulged in that particular sector where we are not having a single knowledge about. And you can say with the speedy generation, we are not able to cope up the speed, we are not able to adapt the changes, due to which we are facing so many type of stress in our day-to-day life. Now, what is stress? Benjamin Franklin actually defined it that stress is often termed as a 20th century syndrome born out of man's race towards modern progress and its ensuing complexities. Just now only I discussed that each and every person, each and every human being is competing with himself just to adapt the changes, whatever progress. Supposedly, if a person is not tech savvy, and just now I am taking an example, our director sir has prepared an app for our school. Many of our teachers are tech savvy because these all are young generations, but the teachers, supposedly if I take Chote Lal sir, he is not that much tech savvy. So he will be facing some of the issues with that. Now what will happen? Supposedly if he will be asked to fill up that particular app, so will he be able to do it? No. Finally what will happen? He will start facing that stress. He will be like losing all his boosters. So to cope up, what he has to do? He has to learn it. Then only he will be progressive, or else the complexity will be same for him. Meaning of stress. Stress can have a big impact on your body in ways that are felt by just you and in ways that the world can see. One of the more visible potential byproduct of stress is weight gain. Many people find themselves to be emotional eaters who react to stress by reaching for something, often the wrong thing to eat. Stress can also create a loss of appetite, which can be a problem as well. Supposedly, if my mind is not relaxed, it is very true that you will be facing n number of problems in your life. It can be like physical changes, emotional changes. There will be drastic change in your personality. Many a times it happens. See, a person has two things. First is his personality, second one is his attitude. Personality, you can change. Supposedly if a person is not smart, he can visit any of the saloon and he can get makeover. But attitude depends on the person standing in front of you. If he is behaving with you in a very proper manner, you will also behave with him in a very proper manner. So attitude depends on the person who is standing in front of you. But after that also, what we are doing? One thing I just, yesterday I was seeing a reel, in that I just saw कि हम इस बात से ज़्यादा परेशान हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अरे अगर वो काम भी हम ही करें कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो वो तो बेचारा बेरोजगार हो जाएगा, उसके पास अपना कोई नाम धंधा नहीं होगा। Now,
इमोशनल ईटर्स फाइंड देमसेल्व्स टू बी इमोशनल ईटर्स। अभी हमारे शरीर में इफ यू विल बी चेकिंग आउट मेनी ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, मेनी ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। रीजन बिहाइंड दैट, कोई अगर हम लोग मोटा हो रहे हैं तो ये मत समझिए कि हम लोग खाना ज़्यादा खा रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं, दिमाग को ना हम लोग इतना परेशान कर दे रहे हैं ना कि वो हमें कहीं ना कहीं लीड कर दे रहा। यहाँ का एंजाइटी कहीं तो निकलेगा तो शरीर फैल गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम दुबले पतले हो जाते हैं, सिंगल चेचेस, तो दैट आल्सो डिपेंड, ज़्यादा स्ट्रेस लेगा ना। थर्ड थिंग इफ यू विल बी चेकिंग आउट, कुछ इतने परेशान हो जाते हैं, बोलते नहीं कि मतलब बोल भी नहीं पा रहे और किसी के सामने रो भी नहीं पा रहे, उसको पेट में रख भी नहीं पा रहे, ये चीज हो रहा है। Many a times it happens. Some of the conditions will definitely come in your life when you will not be able to discuss it with your parents also. उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? Suicide. That leads to suicide, and that is the main reason which is leading to suicidal stress. And people are also not open-minded, you can say. Still they are like, अभी अगर आप किसी को बोलेंगे कि सर अगर कोई भी चीज़ जो उनका कल्चर है अगर उससे हटकर अगर कोई काम करने को कहेंगे ना, वो डरेंगे, बोले नहीं सर हम लोग जिस कल्चर में पल रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट द चेंजेस। एंड until unless if a person will not adapt any change, then growth is like immovement. It can never happen. Yeah, signs of stress: insomnia, loss of mental concentration, absenteeism, depression, extreme anger and frustration, family conflict, migraine, headaches, and back problems. These are some of the probable symptoms which states that you are in stress. First thing, you will not be able to sleep properly. Whenever you will be moving to your bed, that stress will hamper your, you can say, the entire night. Second thing, loss of mental concentration. That is very true. Supposedly, if I am worried, if I am in anxiety, so whether I will be able to focus on any work? No. Answer is big no. Absenteeism. Absenteeism in the sense, whenever you will be moving to your classes, you will be present physically, but mentally you will be absent. You will not be able to get in touch with the students probably. Now, family conflict. Supposedly, from my workplace, if I am moving to my home, and if I am having some of the tensions due to my workplace, definitely you will put it out somewhere. तो पत्नी आ जाए, पत्नी से लड़ाई हो, बच्चे रहेंगे, बच्चे को मार देंगे, माँ से झगड़ा हो, तो ये सारी सिम्टम्स हैं, ये हमें बताती हैं कि अब हम धीरे धीरे स्ट्रेस की ओर अग्रसर है। माइग्रेन, अधकपाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, आधे माथे में दर्द होता है, हेडेक्स, बैक प्रॉब्लम, शरीर में जितनी भी समस्याएं हैं सब शुरू हो जाएंगी होने अगर ज़्यादा दिन स्ट्रेस में रहे तो। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, जॉब इनसिक्योरिटी। सर, nothing is permanent on this earth. Nothing is permanent. Today we all are here. Tomorrow where we'll be, we don't know. So better suggestion is that enjoy each and every moment of your life. If someone is making fun of you, let him make. No problem. कितने दिन, है ना? कोई अगर आपके बारे में कुछ अच्छा बुरा बोल रहा, बोलने दीजिए सर, कम से कम उनकी हिम्मत तो नहीं है कि आपके मुंह पर बोल सकें, है कि नहीं? हिम्मत है क्या मुंह पे बोलता है? जिस दिन हिम्मत होगा मुंह पे बोलिए, उस दिन आप स्ट्रेस ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। जॉब इनसिक्योरिटी में अगर हम लोग बात करें, supposedly if your company is paying you 50,000 rupees, the company will take back the work of at least 5 lakhs. That means whatever they are paying into 10 times.
Otherwise, if you will be getting into any of the private banks now, you will be hired in operations. But your KRA, the key responsibility areas, will be around 75 to 80% will be of sales. What you all have to do? जो चेक आ रहा है उसको क्लियर करना ही है, सब कुछ NEFT RTGS सब करना है आपको। उसके बाद शाम जैसे ही 5 बजे का शटर गिर जाएगा ना, तो आपको बुलाया जाएगा वहाँ ऑफिस में। आज कितने का लाइफ इंश्योरेंस आप बेचिएगा, कितने का क्रेडिट कार्ड बेचिएगा, कितना अकाउंट खोलिएगा करंट और सेविंग्स, उसमें भी कोई हाई वैल्यू अकाउंट है कि नहीं उसमें से बताइए। और लास्ट में आपको 9 बजे फिर से डिस्कशन होगा, रात के 9 बजे कि आज आपने क्या किया। अगर आप कुछ नहीं कर पाए ना, तो यार आउटपुट इज 0। 4 बात बढ़िया बढ़िया सुनिएगा, फिर घर की ओर वापस भी चलो। और कंपनी आपको झेलेगा, 3 महीना झेलेगा, फिर उसके बाद आपको नोटिस पीरियड पे डाल देगा कि आप 3 महीना आप काम कीजिए और हमको बरी कीजिए, आप काम नहीं करें। तो आज के समय में सबसे बड़ी तो चीज यही है कि जॉब इनसिक्योरिटी। एंड यस, दैट इज वेरी ट्रू दैट विद ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, whatever the company will frame, you have to move on or else you have to leave. हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सेकेंड थिंग, हाई परफॉर्मेंस डिमांड। जस्ट आई टॉक कि अगर 50,000 रुपए सैलरी है आपकी, तो आपको 5 लाख रुपए का काम करके देना पड़ेगा, तभी आपकी वहां पर वैल्यू होगी, अन्यथा आपके जैसे बहुत पड़े हुए, है ना सर। Bad boss. Many a times it happens that the superiors under whom we are working, the team leaders under whom we are working, are not behaving properly with us. And many of them, it has been observed that around 20 to 25% of the workers leave just due to this reason, bad boss. ताली दोनों हाथ से बजता है। अगर आपको काम चाहिए तो आपको भी इस तरीके से काम करवाने का हुनर होना चाहिए, तब आप काम दोनों का, क्योंकि विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज वर्कर एंड ऑर्गेनाइजेशन कांट रन प्रॉपर्ली। फोर्थ वन, वर्क प्लेस कल्चर। वर्क प्लेस कल्चर की अगर हम बात करें तो किसी को चीटी नहीं काटना चाहिए। चीटी नहीं काटना इन द सेंस, आप यहाँ पर हायर हुए हैं फॉर बिल्डिंग द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर अपने काम पर अगर हम फोकस करेंगे तो बॉस भी खुश रहेंगे, मैनेजमेंट भी खुश रहेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, प्लस ऑन अ डेली बेसिस यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग न्यू। आज हम लोग अपने रूम पर देखिए, हम लोग मैनेजमेंट को झूठ बोल सकते हैं कि हम लोग रूम पर जाकर पढ़ाई करते हैं फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इस बात को अपने आप से पूछ कर देखिए कि हम लोग अपने क्लास में जाने से पहले कितना प्रिपरेशन कर पाते, नहीं कर पाते। हो सकता है थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम भी हो हमारे पास वहाँ पर, लेकिन हम लोग टाइम मिलता भी है तो हम लोग बैठ कर रखकर उसका चुगली करते हैं, उसका चुगली करते हैं, उसका चुगली करते हैं। इसी में तो दिमाग है, तो प्रोडक्टिव हम कैसे बने? प्रोडक्टिव हम कहाँ बने? बच्चे, आप चाहेंगे कि बच्चे हमसे पूरा जुड़ाव रखें, बच्चे जुड़ाव रखेंगे, क्योंकि जब तक उनको वो मटेरियल आप प्रोवाइड नहीं कीजिएगा जो उन्हें चाहिए, तो क्या वो आपके अपने होंगे? क्या नहीं बना पाइएगा आप उनको अपने दिमाग, नहीं बना। तो वर्क प्लेस कल्चर बहुत मैटर करता है। हमें सौहार्दता वाला वो कौन सा मैटर, उसको क्या हम बोलते हैं, सौहार्दपूर्ण अगर हम लोग परिस्थिति बनाकर रखें तो स्ट्रेस कभी जीवन में आएगा ही नहीं। Personal or family problems. Many a times it happens कि if you are unable to fulfill the demand of your families, the conflict is unavoidable, होना ही है। अगर आप पत्नी को गढ़ चुके हैं कि हम आपको सिल्क की साड़ी देंगे और आप नहीं दे पाइएगा, तो वो आपको जीना हराम कर ही देगी 2-3 महीने। That is very true. Now coming to technology. Just now earlier also I discussed, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग वो उतने टेक से भी नहीं है,
अब अगर उनको मैं चाप गोली चढ़ा देने के लिए कि नहीं सर आपको करना ही पड़ेगा, कैसे करेंगे बेचारे? लास्ट में बोलेंगे सर हमसे नहीं हो पाएगा, हमको जाने दो। यही होना है। तो आज के टाइम पर तो बच्चे इतने हो चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे चलाते हैं, सभी कोई जानता। We have to change we have to adapt the changes whatever it is going around our surrounding. The day when you will be able to adapt those things, stress can never hamper you, never ever in your life. Now, eustress and distress. There are two types of stress. First one is your eustress and second one is your distress. There is a vast difference between these two, you can say, stresses. This stress is helpful, it motivates you actually. And this stress actually leads to suicide. Eustress or positive stress has the following characteristics. Motivates, focuses energy. Supposedly, many of us are class teachers. बहुत सारे बच्चों का आज भी अगर कॉपी किताब में हम लोग कवर अप लेके तो कवर अप नहीं हो पाया तरीके से। यहाँ से मैनेजमेंट हमें बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा सा देखिए, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस हो रहा है दिमाग में। लेकिन उसी में मैनेजमेंट अगर ये चीज़ इंक्लूड कर दे कि जिस क्लास का बच्चा सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा, उनके चाहे यूनिफॉर्म से लेकर बुक्स लेकर कॉपी से लेकर, उनको हम लोग फेलिसिटेट करेंगे 5,000 रुपये या 10,000 रुपये से, तो वहां पर क्या हो गया, एक मोटिवेशनल फैक्टर जुड़ा। अंडरस्टूड? अब मोटिवेशनल फैक्टर जब वहां पर जुड़ गया तो हम जितने भी क्लास टीचर्स है ना, हम चाहेंगे कि वो पैसा हम लें। तो वहां पर कंपटीशन होगा, स्ट्रेस वो झेलेगा, ये बाबू उसके आगे पीछे करेगा, भाई बाबू भैया कर लो प्लीज कर लो, होगा सर। लेकिन उससे पेरेंट्स से बात भी करेंगे कि सर अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसा किताब ऐसा अच्छा नहीं लगता है, लगा दीजिए। You will be taking that risk because you want to be a game changer. तो वो पैसा आप कमाना चाहिए, तो मोटिवेशनल फैक्टर वहां पर इंक्लूड है। सेकेंड थिंग इज शॉर्ट टर्म, इट इज वेरी ट्रू। स्ट्रेस होता है ना, जैसे मान लीजिए कि मेरे इज परसीव्ड एज विद इन आवर कोटिंग। जितनी हमारी क्षमता रहेगी ना, कुछ लोगों को स्ट्रेस होता है उनकी नेचर की वजह से। मान लीजिए कि हमको क्लास 12 पढ़ाने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के सामने बड़ बोलापन में मैं बोल दिया सर ग्रेजुएशन तक आप पढ़ाने को दीजिए, मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ाऊंगा। बच्चे का जब सवाल आना शुरू हो गया ना, ऊपर से पार हो रहा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है टॉपिक में है क्या, तो वेदर वी विल बी एबल टू डील इट, नो। सेकेंड थिंग, अगर हम क्षमता मान लीजिए कि मेरी है 10वीं क्लास पढ़ाने की, मैं बोलूँ कि सर मैं 10वीं क्लास तक अच्छे से पढ़ा दूँ, बच्चे उसके बाद कोई भी सवाल आपसे पूछेंगे तो वेदर इट विल क्रिएट स्ट्रेस, नेवर एवर, नहीं करेंगे। फील्स एक्साइटिंग, उत्साहवर्धक रहता है कि हमें करना है, हमें जीतना है, हमें किसी से आगे निकलना। हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग 8 इंग्लिश टीचर, टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर्स आर 8। इफ वी वांट कि हम सबसे अच्छे रहें, मैं चुगलखोरी करके थोड़े ना अच्छा बनूंगा, मैं अपने आप को रगड़ूंगा, मेहनत करूंगा, उन सबसे कोशिश करूंगा कि कुछ ज़्यादा बच्चे को अच्छे तरीके से मैं बता। सारे टीचर्स का नॉलेज वही है सर, बस रखने का तरीका अलग अलग। तो इसको क्या बोलते हैं, देयर शुड ऑलवेज बी अ हेल्दी कंपटीशन, नहीं तो ग्रोथ रुक जाता है आप लोगों। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सही बात है। जहाँ पैसा मिलेगा, जहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी अच्छी हमें दलीलें मिलेंगी, तो वहाँ पर कभी हम अपने आप को ना अनकंफर्टेबल जोन में महसूस नहीं करेंगे। और जब हम अपने आप को अनकंफर्ट जोन में नहीं रख रहे हैं ना, तो आप समझ कर चलिए कि जो आउटपुट आप दे रहे हैं वो आउटपुट मतलब इट विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जैसे ही आप हाई लेवल परफॉर्मेंस देंगे तो इंक्रीमेंट भी आपका उसी हिसाब से रहेगा। तो फिर स्ट्रेस यहाँ पर क्या काम किया? सी, स्ट्रेस इज
always an accelerator. Mind my words. Stress is always an accelerator. Either it will be taking you forward or else it will be taking you backward. Choice is yours. Positive stress results enables concentration. अच्छा, कोई भी मान लीजिए मेरे पास स्ट्रेस है लेकिन किसी अच्छे कार्य के लिए है, yes. What is healthy competition? Healthy competition. I'm telling you, sir. Ram sir is also a maths teacher. You are also a maths teacher. Ram sir is also teaching from the past, I think, 7 to 8 years. You are also in this school for the past 7 to 8 years. Whenever you are entering into Ram sir's class, supposedly Ram sir is absent in that week, do you complain against him? अरे राम सर को कुछ नहीं आता है, तो बेकार टीचर. कभी बोले? राम सर जब आपकी क्लास में जाते हैं, आपके एब्सेंस में कभी बोलते हैं अरे देवेश सर, या अभी तो ऐसा है कि 12th में एक पीरियड राम सर ले रहे हैं, 12th में एक पीरियड आप ले रहे हैं. कभी चुगलीखोरी वाली काम हुई है क्या? नहीं, अच्छा नहीं बात है. लेकिन आपको भी जुनून है 12वीं पढ़ाने का, सर को भी जुनून है 12वीं पढ़ाने का, ठीक? लेकिन एक दूसरे की बुराई कर है, साथ लेकर चलना है सर. आप और भले अपना नया टेक्निक अपना लीजिए, वो नया खोज कर लीजिए कि मैं बच्चों के दिल में 12 के बच्चों को अगर राम सर पिछले 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, लेकिन राम सर से भी टॉप टीचर मुझे बनना है, बच्चों के दिल में उतरना है, कोई अच्छा तरीका आप सोच कर जाइएगा. दैट इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन. मतलब एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है सर. ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ. कोई अच्छा अगर स्ट्रेस है मेरे दिमाग पर, कोई अच्छे कार्य में अगर मैं अपने एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो वहां पर पूरे कंसंट्रेशन के साथ ही मैं करूंगा ना. अभी जैसे मान लीजिए खाना खाते हैं, खाते समय देखिएगा ना, कोई टेंशन रहता ही नहीं है, क्योंकि पेट को उसकी आवश्यकता रहती है उस टाइम पे ना. तो स्ट्रेस हमको कुछ सोचने का ना टाइम नहीं देता. लेकिन वही कभी ना आराम से कहीं पे बैठे रहिए, मतलब वो जीवन अब समाप्त हो गया. अरे कैसे समाप्त होगा भैया? मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि हमें लगता है ना कि अब इसके बाद मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू, द डे when you think out कि अब इसके बाद मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना, that is the best time when you will be able to check up your capabilities, your capacities. जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, उस दिन उभर कर आएगी. और अगर हम सब ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हम सब उनके बालक हैं, वो कभी भी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते. कोई ना कोई एक दरवाजा होगा सर, देखने की बस देरी. Increases your performance and energizes you into motion. एक बार अगर हम लोग जब रेस अगर पकड़ ले, घोड़ा जब दौड़ना शुरू होता है, तो उसको देखे हैं कि उसको रुक जाता है, कभी धीरे करके आगे बढ़ा, उसका रुक गया कहीं पर अचानक से. देखे हैं क्या? मोशन पकड़ लिया तो पकड़ लिया, चलना है तो चलना है, जो होगा बाद में देखेंगे. Distress. In contrast, distress or negative stress has the following characteristics. Causes anxiety or concern. यहाँ पर एंजाइटी अगर हम बात करें तो आज की अगर बात लें, we all were asked to wait till 4 o'clock, 4:30. So that caused a lot of anxiety. But just now when you announced, ma'am, after lunch you all can move to your, so that has given us the relaxation. अब एक टेंशन है क्या? 8 बंडल कॉपी चेक करना है. हाउ विल आई चेक? इट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस. छोटा ही स्ट्रेस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, वी डोंट डिस्ट्रीब्यूट आवर वर्क इनटू स्मॉल चंक्स. छोटे टुकड़ों में ना हम लोग अपने कामों को नहीं बांटते, और इकट्ठा उसको ना अच्छा होगा ना, होते हो गया आपका ही, कुछ नहीं हो पाया. कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म. देखिए लॉन्ग टर्म होता है, मैं समझता हूँ सर, अगर आप
फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं ना, इम्प्रूव करने में बहुत टाइम लग जाएगा सर, तो दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। और आज के टाइम पे हम सभी को पता है कि पैसा मालिक है, पैसा भगवान। वो बोलते हैं ना कि जब जेब में होंगे पैसे लोग पूछेंगे आपको कैसे, जब हो जाओगे कंगाल कोई नहीं पूछेगा आपका हाल। Third thing, can be short or long PA is perceived as outside of our coping ability। बोलते नहीं है अपनी औकात से बढ़ाकर अगर हम कहीं पर कुछ बोल दें और उसके बाद उसको जब हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो वो तो हमको करेगा ही परेशान। मान लीजिए कि मैं बॉस को ना आज बोल दिया कि बॉस आए हमसे सुबह सुबह देखे कि अच्छे मूड में थे, मैंने सोचा कि आज बोल देता हूँ बॉस को कि मैं 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस इस ब्रांच को दूंगा। सुबह सुबह बोल तो दिया, लेकिन बोलने के बाद क्या हुआ, शाम तक मान लीजिए होता है मैडम, अगर मार्केटिंग सेक्टर में जाएंगे ना सर, बोलते तो हम लोग बहुत कुछ है, हम लोगों से भी पूछा है कहाँ 5 लाख कर देंगे सर, 5 रुपया का भी कस्टमर नहीं मिले हम लोग, ऐसे भी दिन देखने पड़े, तो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं सर। तो वहाँ पर मैं क्या कर दिया, मैं बोल तो दिया, मैं अपनी क्षमता से ज़्यादा बोल दिया, शाम तक सबके सामने घिघिया लिया कि सर ये भैया करवा लो, भैया जूता करवा लो, बोल दिया, कोई देने को तैयार नहीं। किसी से पैसा निकालना ना सर बड़ा प्रॉब्लम है, और वो भी ये सब आज के टाइम पे ना लोगों को अगर आप कहिएगा ना कि चलिए स्टॉक मार्केट में डाल दीजिए, बोलेगा ले जाओ पैसा तुरंत लगा कि जानता है ना वो तुरंत शॉर्ट टर्म में हम लोगों को प्रॉफिट दे देगा। लेकिन किसी को बोलिएगा ना कि इंश्योरेंस ले लो, वो ऐसा आपको देखेगा इंश्योरेंस लेने को, रीज़न इज वेरी, उसको ना पता नहीं चल पा रहा कि इंश्योरेंस क्यों ले रहा है। आज मर जाओगे ना तुम्हारा परिवार रोड पे आ जाएगा। तो उन लोगों को हम ही लोग जो इंश्योरेंस वाले होते थे ना, हम लोग बताते थे कि आपको जीने से ज़्यादा मरना कितना ज़रूरी है। फील्स अनप्रेजेंट। लेकिन एक बात और है कि प्लीज़ अपनी अपनी मैडम को आप लोग ये कभी मत बताइएगा कि आपका कितने का इंश्योरेंस है। कभी पूछेगी तो ऑलवेज टेल, कब कब बोलिएगा 2 लाख 3 लाख बस इतना ही है। फील्स अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट कैसा है हमारा, अब मान लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आज मैं पूरा एकदम लड़ाई झगड़ा सबसे कर लिया, मैं कहीं पर भी कितना भी बड़ा पार्टी में जाऊँगा ना, मेरा मुंह ऐसे ही उतरा है, आपको लोग देखकर समझ जाएंगे कि आज ये लड़के आया है। अब वाइफ से लड़े, परिवार किसी से भी लड़के आया है, या फिर किसी दूसरे चीज़ों को लेकर ना ये बहुत ज़्यादा वरीड है, डिक्रीजेस परफॉर्मेंस। कोई परेशान व्यक्ति आपको कभी भी परफॉर्मेंस मतलब आउटपुट नहीं दे सकता, कोई परेशान आदमी आपको आउटपुट नहीं दे सकता, दैट इज वेरी क्लियर। हम लोग इतना आउटपुट आज डिवाइन में दे रहे हैं, कारण उसका एक ही कि हम लोग सब क्या हैं, फ्री माइंड में अगर हम लोग रह रहे हैं, खास करके डेज पर कोई टेंशन तो वो सब निकल जाते हैं, और उन लोगों का आउटपुट ना अगर एज कम्पेयर टू होस्टलर्स करेंगे तो होगा आप लोगों का ज़्यादा। कारण है मैडम, आप लोगों को इवनिंग क्लास लेनी नहीं पड़ती, यहाँ की चीज़ें नहीं करनी पड़ती, कुछ अगर ज़रूरत हो तो आप लोग तो फ्री हैं, आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता, वहाँ पे समय है आप लोगों के पास, तो आप लोग का परफॉर्मेंस तो हम लोग से बेहतर होगा ही, परफॉर्मेंस बेहतर होगा तो इंक्रीमेंट भी आप लोग का बेहतर होगा। कैन लीड टू मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। देखिए हम लोग शुरू में पढ़े थे, अगर हम लोगों को कोई भी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस अगर होता है, हमारा शरीर सूख जाएगा, किसी को धड़कन की बीमारी हो जाएगी, किसी को सांस भागने की बीमारी हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ होते रहेगा, शांति नहीं रहेगा आपके जीवन। कहाँ गई शांति, वो नहीं। नेगेटिव स्ट्रेस रिजल्ट्स टू लॉस ऑफ मोटिवेशन। किसी भी कार्य को कर लीजिए, मोटिवेशन होते नहीं है बाहरी मन से करेंगे सर, दिल अलाउ कर ही नहीं। रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस। अब मान लीजिए अभी पता नहीं मैं कितना इफेक्टिव हूँ इस रूम के लिए, आई डोंट नो, लेकिन आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि 50% लोग जो है मुझे यहाँ देखना चाहते हो, तो इफेक्टिव हूँ मैं, पूरा मन से अभी दे पा रहा हूँ तब तो, लेकिन पूरा टेंशन में उधर से आता तो मैं जो अभी बोल पा रहा हूँ, जितने तेजी में बोल पा रहा हूँ उतना नहीं बोल पा, एकदम पढ़ के एकदम और जानते हैं एक अच्छा वक्ता जब बोलता है ना तो लोग उसको सुनते ध्यान से इस वजह से क्योंकि उसका बोलने का तरीका क्या होता है। अभी हम लोगों को बहुत सीखने की आवश्यकता है। अच्छा और एक चीज़ क्या होता है, हमसे बड़ा तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है सर, बहुत लोग मिसाइल है, बाहर निकल कर तो देखिए ना। थर्ड वन, फिजिकल मेंटल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, ये अपने लोग डिस्कस करते हैं।
हाँ देखिए, स्लीप अलर्टनेस ऑप्टिमल एंजाइटी डिसऑर्डर। जो हम लोग यूस्ट्रेस की बात किए थे, जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट यूस्ट्रेस, इट वाज लाइक स्ट्रेस इज देयर बट पॉजिटिव स्ट्रेस, इट विल ऑलवेज कीप यू मोटिवेटेड, कार्य के प्रति आपको ना जागरूक रखेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं काम के प्रति जागरूक हूँ ना सर, 8 घंटे मैं आराम से काम करूँगा, 8 घंटे सोऊंगा, 8 घंटे में बाद बाकी अपनी सारी काम करूँगा। देखिए ये कितना आराम से ये आदमी सोया हुआ, क्योंकि इसको पता है कि मैं अपने पूरे डिवोशन के साथ काम कर रहा हूँ ना, आई एम डिवोटिंग माई टाइम, तो वहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो ही जाना है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम रुक जाए। दूसरा, मीडिया में देखिए, मीडिया वाला क्या किया, ये कि यूस्ट्रेस के अंदर नहीं है, आपको दौड़ाना शुरू किया। अब जब आप रेस में अपना भागना शुरू करेंगे, कभी भी वो स्प्रिंटर्स को आप लोग देखे हैं, जब वो धावक दौड़ना शुरू करता है ना सर, वो पहले मोशन बनाता है धीरे 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 धीरे, देखे होंगे, उसके बाद एक बार में कब एकदम लगता है गोली चल गया, ऐसा स्पीड में भागता है। और तीसरा देखिए बेचारा का स्थिति, रो रहा है, हाँ हाई स्ट्रेस। अगर मान लीजिए कि अभी मैडम आप लोगों को बोल दे, हम लोगों को बोल दे कि बिफोर लीविंग द स्कूल टुडे ओनली यू ऑल हैव टू सबमिट द बंडल्स, जितने भी बंडल्स मिले हैं आफ्टर चेकिंग, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंक्रीज, स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस माने एकदम ऊपर से भी ऊपर है ना। तो लास्ट टाइम वी डिड ना, last time ma'am, it happened with us that within 1 week only we had to declare the results. So that time it was like what was happening, we were also not knowing, koi kahin pe ga raha hai copy, kahin koi pe ga raha copy, that was the situation that actually needed us to like high, it was a very high stress during the our ex-principal sir, ye dekhiye effects of stress, you won't be able to read, I am reading. Work related stress can result in high levels of employee turnover. Employees experience stress are more likely to make poor decisions and casual errors. Workplace relations and customer service may deteriorate. अगर आज की बात करें ना सर, we all are also doing the customer service. We all know. Yes. किसी के पिताजी पैसा हमें दे रहे हैं 1500-1800 रुपए, उसके एवज में हम उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। This is also a type of service, but we are providing from our side. ठीक? अब बहुत ज़्यादा आप परेशान रहेंगे, उनके बच्चों को आप अच्छे से इनपुट नहीं दे पाएंगे, बच्चे फेल होंगे, तो फिर जवाब देने के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो अपने टाइम पे पैसा जमा किया। आप उनके बच्चों को अगर इनपुट सही तरीके से नहीं दे पाए, अच्छा सही तरीके से नहीं दे पाने का कारण क्या है, आप तो खुद ही परेशान है, आपके जीवन में शांति है ही नहीं। Be prepared for changes. Be prepared for changes. As we have already discussed earlier, before 1 month, the scenario was different for the school, because we were working under someone else. Now someone has newly joined. Things are changing. If we are not ready to accept the changes, then whether we will be able to cope up with the speed? No. A big no. Whatever rules and regulations will be formed from the management side, we all have to follow that also. Mane, you have to be on the track which the management has provided, the guidelines which management has provided to us, or else you won't be able to continue for a longer period of time. No. Find and protect time to refresh, re-energize and remotivate. बोलते हैं ना हम लोग, दोस्त भी यहाँ पर बैठते हैं तो कभी कभी तो हंसी मजाक का बात करते हैं, तो देखिए बहुत रिलैक्स फील होता है। प्लस कुछ ऐसे भी दोस्त मिल जाते हैं जिनके साथ ना अपना हर सुख दुख आप बांट सकते हैं। जैसे मैं विमल सर से सब कुछ बोलता हूँ, तो अपना अपना दोस्ती होता है कि उनको जिससे भी लगे। अब अगर मुझे कोई सजेशन लेने बोलेगा तो मैं अनिल सर को वहाँ पे जाऊँगा कि अनिल सर हमको ऐसे बात, मेरा इंक्रीमेंट का भी टाइम आएगा तो मैं उन्हीं से पूछूंगा कि सर मैं कितना बोलूँ। तो
वो डिपेंड करता है कि सामने वाला भी बंदा कितना ऑनेस्ट है आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है। Avoid giving in to alcohol, smoking and other substance abuse. मैंने कभी भी टेंशन हो ना तो इन सब चीज़ों से बोलते हैं ना, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन जहाँ जहाँ लिखा रहता है तो वही करते हैं, लोग भारतीय है। तो यहाँ पर कभी भी हम लोग अच्छा देखें किसी किसी को अरे बहुत टेंशन हो गया है तो भाई जा रहे हैं तो मैम many of them are in a habit कि when they are in tension they usually take alcohol and cigarettes। हाँ, और बोलते क्या है, शांत हो जाएगा दिमाग। अरे बुड़बक शांत नहीं होगा, वो तुमको उतनी देर के लिए ना सोने के लिए दे देगा, सुबह उठोगे तो वो टेंशन वापस से कवर अप कर लेगा। भड़ास निकालने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। भड़ास अगर आपको निकालना ना, देखिए हमारे गणपाचों में बहुत अच्छा प्राकृतिक ये सब है ना रूप, तो कहीं भी जंगल में चले जाइए सर, पूरा जंगल अपना है, हाँ, और जाके जितना जोर जोर से चिल्लाना चिल्लाइए सर, किसी से लड़िए इधर मत, वहाँ जाकर चिल्लाइए सर। उससे क्या होगा, यहाँ की भी आपकी रिलेशन ठीक रहेगी और आपके मन का भड़ास हो रहेगा ना, वहाँ पेड़ पौधा तो सुन के भी आपको हवाई देगा सर। यहाँ कुछ बोल दिया कोई कुछ गलत करने आपके साथ, है ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग वहाँ जंगल जाकर सर चिल्ला चिल्ली करें। बेस्ट ऑप्शन इज रनिंग नहीं सर, बाप रे बाप, उतना पसीना एक तो ऐसे ही नहीं और दौड़ के और गर्म कर लो, गलत बात। यस सर, Sir, you told me just many things you told about causes of anxiety, causes of stress. But I want to know from you, just sir, how can we minimize our stress, which is very necessary? How can we minimize? Because you know, from morning to night, that work pressure is there, tension is there. So for example, at 5:30 we have to go get up in the morning. After that we have to do this, then go to put on dress and get ready and go to school. After going to school, there is also stress. A lot of pressure is there. After that, when then 8:30 when you become free, physically and mentally you are tired. What it? Then as a result, then what to do at that time? And how can we minimize that? Is it at all possible to minimize your stress? Thank you. see, first thing what we do generally, many of us after returning back from the workplace, we usually put on our pods and we listen to some of the soothing sounds. First thing what we do, जैसे ही हम लोग ना एकदम मधुर स्वर वाला अगर कुछ गाना सुनते हैं ना, तो हमारा दिमाग ना ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, काम डाउन होना शुरू होता है। If you are in a habit of doing meditation, you can go for the meditation also. Third thing, you just throw that person, throw that thing out of your life who is responsible for this stress. हाँ, वो बात अलग है कि पत्नी से झगड़ा हुआ तो उनको आप बाहर नहीं भेज सकते। बाद बाकी कोई बाहरी अगर दुनिया वाला कोई आपको परेशान करने पे लगा हुआ ना, जस्ट कीप हिम अवे, नहीं चाहिए। It is easy to say your feelings or right. Easy to say. But is it at all possible? After all, we people are human beings, and we know very well that we are not 100% emotionally. We have a psychological problem also. Okay, that we can ignore it. But is it at all possible? Is there any medicine that we can minimize that stress? Medicine तो sir, I'm not a doctor first. May I reply this one? Okay, so actually, so what is stress we have to okay. The day that you are telling that our day routine, the entire routine of ours is very stressful. Since we have to get up early, either we sound sleep, take sound sleep or not, but we have to get early. Okay, 4 o'clock, 5 o'clock, we have to get up. Then we have to come to school. The stressful days are there. Running here and there, classes in the school, infrastructure is very big. You have to go here and there. Okay. Then after that, you are not even taking lunch properly. Not even you are taking your relaxation properly. And then you have to come back again for the evening sessions and all. So what we have to do that but first we have to express us. पहले क्या करना है कि दिमाग को शांत करना है। दिमाग को शांत करके पहले पूरा कैलकुलेशन करना है कि कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। क्यों कोई एक व्यक्ति है जो वही काम करके प्रॉपर्ली सब कुछ मैनेज कर पा रहा है, और क्यों मैं हूँ जो प्रॉपर्ली नहीं भी कर मतलब करने की कोशिश करके भी मैं मैनेज नहीं कर पा। तो ये दो
चीज़ें बहुत आराम, आप किसी देखेंगे किसी व्यक्ति को ही बहुत सारे टीचर्स है, किसी को देखते हुए एकदम आराम से घूम रहे हैं, कोई काम नहीं, उससे ज़्यादा बड़े थे उसके ऊपर, लेकिन आराम से घूम रहे हैं, है ना। और फिर भी वो क्या है, एकदम रिलैक्स है और उसको काम भी टाइम से हो गया। मैं पूरे दिन सर को लेके परेशान हूँ, लेकिन फिर भी काम से टाइम से मेरा काम नहीं। तो क्या है कि एक्सपोजर बहुत जरूरी है। बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, रूम में जाते हैं, मोबाइल ले लिए, बैठ गए, सो गए, और टाइम मिला तो सो गए, अच्छी बात है, आपका माइंड रिलैक्स हो गया, उसके बाद उठ गए। मेरा अगर क्लास नहीं भी है या क्लास है भी तो क्या हो गया, टाइम है मेरे पास, तो कहाँ दे रहे हैं, रूम में बैठे हैं। तो आप सोचिए कि फ्रीडम नाम की चीज़ क्या है। आप एक रूम में अपने आप को बंद कर ले रहे हैं, तो अपने अपने आप को एक्सपोजर दिया, आप किसी से टॉक किए, आप किसी से बात किए, पूरे दिन का जो आपका दिनचर्या है किसी को आपने बताया कि आज मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ। आप जब तक अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि कन्वर्सेशन दैट वी हैव टू स्टार्ट। किसी व्यक्ति से कोई भी नहीं है तो सबसे अच्छे तो आपके माता पिता हैं, आप उनसे तो बता सकते क्या जैसे हुआ, मुझे डांट पड़ी, मुझे प्रेज हुआ, मुझे ये चीज़ कहा गया, मेरे बच्चे ने मुझे ऐसे परेशान किया। एक कोई छोटी सी बात बता लीजिए, जैसे कि मैं एक बार की आपको बात बताती हूँ कि कुछ चीज़ हमारी लाइफ में ऐसी होती है छोटी छोटी, जब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं, फिर कुछ चीज़ ऐसी हो जाएगी कि आपको रिलैक्स भी कर। तो रिलैक्स करने के लिए क्या है कि आपको पहले तो मतलब थोड़ा अपना फैमिली, जो भी गुड पर्सन आपके साथ है, फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनकी थोड़ा आपको लविंगली केयर उनको कॉल कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए, प्रॉब्लम शेयर। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उनको शेयर। दूसरा है एक्सपोजर। अब एक्सपोजर में क्या है कि आपको संडे मिला है एक छुट्टी, अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है शुरू से लेकर आज तक तो आपको संडे भी नहीं देता। बहुत सारे ऐसे जॉब्स जिसको संडे भी नहीं मिलते, समर वेकेशन है, बहुत सारे वेकेशन हैं, तो वेकेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, चलो संडे है रूम में ही बंद, आज कपड़ा धोए नहीं, कपड़ा सैटरडे को नहीं धोए, कपड़ा संडे को धोए, पूरा रूम का सफाई करें, रोज झाड़े, आज ये काम करें नहीं, तो क्या है जितना भी कर रहे हैं वो उसी रूम के अंदर ही करें। अब यहाँ से थोड़ा हम लोग अपने कल्चर से हटके थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए जो सक्सेसफुल है अपने लाइफ, ठीक है ना, जो बहुत सक्सेसफुल है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग वेकेशंस पे भी जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत बड़ा वेकेशन जा सकते हैं, हम घर जा सकते हैं, आसपास की जगहों पे जा सकते हैं, छोटा मोटा वॉक ले सकते हैं, 3-4 लोग जुड़ गए तो चलो पचपेली ही चले गए, कुछ 2-4 किलोमीटर आगे ही चले गए, है ना, कुछ चले गए। एक्सपोजर तो क्या होगा, फिर आपका माइंड क्या हो गया, कमिटी रिलैक्स हो गया, स्कूल का टेंशन, घर की टेंशन, जो भी किसी के साथ अनबन थी वो सब खत्म हो गया, और वहाँ जाके क्या हमको मिला, एक्सपोजर मिला, नई चीज़ों में हमारा दिमाग इन्वॉल्व हुआ, तो माइंड धीरे धीरे क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। अब जब आप घर वापस आते हैं, सोते हैं, तो आप पूरा दिन कैलकुलेट कीजिए कि आज क्या क्या हुआ, क्यों, क्योंकि आपका दिमाग अब रिलैक्स है। इफ़ यू हैव बीन वॉच्ड मी, आप देखते हैं कि 8 बज जाए या 8:30 बज जाए, मैं यहाँ से लेके वहाँ तक वॉक जरूर करती हूँ, सुबह फास्ट फूड करती हूँ। पर डे मैं शाम को जाती ही जाती हूँ विथ माई हस्बैंड इन माई डे, एवरी डे रूटीन। उससे क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा आई डोंट केयर, पर वो जानना है, क्यों, क्योंकि वो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, उतना मेरे माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। दैट 10 to 15 minute walk that we talk about only our things, no stress is there. We have decided that we will not discuss the professional work in our house. There is a curtain, and after that curtain I'm a principal, I will discuss all my things there over only, and when I come into my home I'm a mother, I'm a wife, I'm doing my work only. अगर कुछ ऐसा है तो डिस्कस करते हैं, है ना, डिस्कस करके उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉब्लम को वही रिजॉल्व करते हैं। लेकिन जो एक्सपोजर का टाइम है उसमें कोई डिस्कशन, उसमें हेल्दी बात, किसी की घरवाले की भी चुगली नहीं, अच्छा मेरी मम्मी कैसे बोल रही, नहीं, नो नथिंग, किसी के बारे में कुछ नहीं, ज़्यादा ये नहीं वो नहीं, अपने बारे में, अच्छा अभी हमारे पास क्या स्टॉकिंग्स है, अच्छा ऐसा है उसको ऐसे करेंगे, गर्मी छुट्टी पे घर जाएंगे तो ये चीज़ें करेंगे, है ना। तो माइंड को हेल्दी रखने के लिए क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बातों का आपको थोड़ा एक लिमिटेशन देना होगा कि हाँ यहाँ तुमको पॉजिटिवली इनके बात करना है, एक्सपोजर देना होगा, माइंड रिलैक्स होगा। आप रात को बैठिए और शुरू से सोचिए पूरे दिन, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मेरी गलती थी, जो स्ट्रेस हो रहा है वो मुझे क्यों हो रहा है, क्या मुझे उसके लिए टाइम, मतलब जो भी मेरा टाइम था
ठीक है, मेरा बहुत पैक रहता है डे, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, तो मैंने क्या उस चीज़ को कैसे किया, तो उसके लिए आप थोड़ा सा आपको क्या है कि सोचना होगा, सोच करके इसकी प्लानिंग करनी है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उनको होता है जिनकी कोई प्लानिंग नहीं होती। अच्छा करेंगे ना ये वाला कार्य, ठीक है, तो कितना दिन का टाइम मिला, 17 तारीख को जमा करना है, तो 16 तारीख को रात में बैठ के 2 बजे तक बनाना है, तो आपको स्ट्रेस ही होगा ना, क्योंकि आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की कि हाँ मुझे क्या करना है। क्वेश्चन पेपर अगर 10 तारीख को जमा करना है तो 9 तारीख की रात में बैठ के 2 बजे 3 बजे तक बैठ करके 10 क्लास में क्वेश्चन पेपर बनाना है। अगर आप कॉन्शियस है तो, नहीं है तो 10 तारीख को सुबह में भी कुछ 2-4 उठा करके लिख करके दे देना था, है ना। तो ये सब आपको स्ट्रेस होगा ही अगर आपकी प्री प्लानिंग नहीं है, एक्सपोजर नहीं है लाइफ में, और किसी और के प्रति कंसर्न नहीं है, किसी का आपके प्रति कंसर्न नहीं, तो आपको स्ट्रेस होना है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जिससे ओवरकम कर सकते हैं, जिसमें से एक सकता है म्यूजिक। म्यूजिक इज द बेस्ट पार्ट। तो थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल इसमें एक ही बात है कि अपने लिए टाइम, अपने लिए टाइम निकालने का मतलब ये नहीं कि चलो सब्जी भी काट लेंगे, मतलब म्यूजिक सुनने कह दिया तो क्या करेंगे, महिलाएं बैठ जाएंगी, चोली बहना ले लेंगी, काम भी कर लेंगी, घर लगा देंगे। नहीं, 5 मिनट्स ओनली यू गिव टू योरसेल्फ, 10 मिनट्स ओनली। कान बंद करके, आँख बंद करके थोड़ा देर आप रिलैक्स होकर सोइए, थोड़ी देर अपने आप माइंड को रिलैक्स कीजिए। व्हाट हैपेंड, और फिर उसके बाद अपने आप को देखिए, उसके अपना माइंड देखिए, वो सेटल हो जाएगा, माइंड को सेटल होने का मौका दीजिए, उसके बाद आप समझिए। So that is my answer for Yes, that. thank you. Thank you. Positive attitude, just now ma'am answered for that, but positive attitude towards stressful situations in life. Don't be complacent. Sit straight and comfortably on your seat and try breathing exercise. Try creative visualization. See, many a times what happens, we try to control that thing which is uncontrollable. हम वैसी चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल है, तो मुझे लीड करेगा कहाँ, स्ट्रेस में। अच्छा, भविष्य में क्या होना है उसके लिए हमें बड़ा समस्या रहता है हमेशा कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। अरे प्रेजेंट तो जियो। अ गुड सेइंग इज देयर इन इंग्लिश मैम दैट योर पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, योर प्रेजेंट इज अ न्यूज़पेपर एंड योर फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर. So read and write very carefully or else your entire life will become a tissue paper. कहने का तात्पर्य था मैम कि जो हमारा पास्ट है उसको अब हम बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। जो प्रेजेंट है दैट इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्यों कह रहा हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है घटना वो कल के प्रभात खबर दैनिक जागरण में छपना है, मतलब छपना इन द सेंस आपको पता है न्यूज़पेपर है, और कल क्या होना है दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग अगर अभी तरीके से अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे ना, तो टिश्यू पेपर का काम क्या होता है सर, अंडा रोल खाए, होठ पोछे, हाथ पोछे, एक दिए डस्टबिन उसको नसीब है सर। एंड वन टाइम, समटाइम इन द पास्ट अ पर्सन आस्क्ड मनी, जो हमारा मनी होता ना, अरे तुम तो पीस ऑफ पेपर, यू आर पीस ऑफ पेपर। सोचिए मनी का एटीट्यूड उस नोट का, हंस के जवाब देता, बेशक मैं एक पीस ऑफ पेपर हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कोई डस्टबिन नहीं बना जहां मुझे फेंका गया। डिफरेंस बिटवीन दैट टिश्यू पेपर एंड अ पीस ऑफ पेपर विच इज नोट, इतना डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ एटीट्यूड की है मैडम। उसके पास गांधी जी छप गए तो उसीलिए उसका वैल्यू बढ़ गया। ये बेचारा सफेद एकदम बेवा विधवा जैसा रहता है, उसको यूज करते हैं उसके। Now, stress management. It is the amelioration of the stress and especially chronic stress, often for the purpose of improving everyday functioning. Stress produces numerous symptoms which vary according to person, situations and severity. These can include physical health decline as well as depression. Okay. सर इसमें देखिए हमारे अंदर के भीतर भी ना कभी कभी चेंजेस आएगा ना, तो उसको इग्नोर मत कीजिए।
भले हम लोग ये कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट, सो स्ट्रेस विल आल्सो नॉट लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, बट अगर उससे हम compete नहीं कर पाएंगे, उससे ऊपर उठने का प्रयास अगर हम नहीं करेंगे ना, then finally a day will arrive when you will be like I'm out, खत्म, सब खत्म। चीजों को हम लोग इकट्ठा करना हम लोग जब शुरू करते हैं ना, आज के जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यार वी आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव थिंग्स। आज के कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, कुछ माँ बड़े गर्व से कहती है यार देखिए ना मेरा 1 साल का बच्चा अपने से मोबाइल खोल के ना कार्टून पोकेमोन या डोरेमोन लगा ले। अरे ये आपके लिए शर्मनाक बात है। कभी आप लोग ये बोले कि बेटा ठीक है तुम अगर खोला भी है पोकेमोन डोरेमोन जो खोल रहा है, महाभारत देखो, रामायण देखो, संस्कार आए। हम ही लोग अपने बच्चों को ना उस तरफ कभी भी भेजने का प्रयास नहीं करते जहां से उनको कुछ सीख मिले। उसमें भी अगर एक स्ट्रेस का ना आखिरी चीज मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेस का, गीता में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। दैट इज वेरी ट्रू। हम लोग कभी भी उन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पाते। जो चल रहा है चल रहा है, नहीं हो पाएगा। जो ट्रेडिशनल चल रहा है, आप लोग एक तो आप लोग की वीडियो देखोगे सर, वो जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो बोल रहे थे कि हम लोग ना पुराना ट्रेंड अभी तक फॉलो कर रहे हैं। बच्चों को लोग सिखाते आ रहे हैं ना कि गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, निकालना पड़ता है। सुने हो गया? कोई कहता है ना कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। क्यों? पहले पैर फैलाओ, उससे बड़ा चादर लाओ। ट्रेडिशन अब चेंज करना पड़ेगा सर। हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए। ये भी कोई बोल दिया कि डर के आगे जीत है। अरे डर के आगे दर्द है। दर्द से कुछ सीखिएगा तब जाके आप कहीं कहीं जीतोगी। तो लोग पागल हुए पड़े हैं कि भैया हम स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे। नहीं निकल पाइएगा कभी। एक्यूट स्ट्रेस क्या है हमारा? एक्यूट स्ट्रेस इज यूजुअली फॉर शॉर्ट टाइम। देखिए अभी ये छोटे पीरियड के लिए है, जैसे ही कॉफी सब चेक होकर यहाँ पे जमा हो जाएगा ना तो खत्म हो जाएगा। तो दैट कम्स अंडर एक्यूट स्ट्रेस। अब क्रॉनिक स्ट्रेस में अगर हम बात करते, देखिए किसी को अगर पैसे की समस्या है ना, वो क्रॉनिक में आए। जो बेचारा, अगर एक भिखारी से हम एक्सपेक्ट करेंगे सर कि वो खाना ना, एक तो बेचारा को मिलता नहीं, तो जिस दिन मिल जाए उसके लिए उस दिन बहुत बड़ा दिन हो जाता है। लेकिन पैसा कहीं से कमा नहीं पा रहा। कोई रिक्शा वाला कोई देखे सर, उसको पता है कि वो किसी भी हालत में 300 रुपये कमाना ही पड़ेगा, तब जाकर मैं कहीं 100 ग्राम या 200 ग्राम दाल ले पाऊंगा, आधा किलो चावल लेगा, तब जाकर घर का खाना बनेगा मेरे पूरे परिवार। ये क्रॉनिक स्ट्रेस है, इससे जूझता है। वी शुड ऑल्सो नॉट पोक फन एट वीकलिंग्स। दैट इज वेरी ट्रू। हम लोगों को कभी भी फन नहीं, उनका मजाक नहीं होना चाहिए। Causes of stress are whenever our body feels something not favorable, then it tries to defend itself. If this situation continues for a long time, then our body is working overtime. अभी साहा सर ने कहा था एक चीज कि सुबह 5:30 बजे से लेकर 9 बजे रात तक हम लोग पैक रहते हैं। सच्चाई यही है कि अभी दोपहर में भी जाइए तो लाइन कटा रहेगा, पंखा भी नहीं मिलेगा, तो आदमी सो भी नहीं पाता। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्ट्रेस की बात करें इस अकॉर्डिंग्स में, तो साहा सर का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो साहा सर को मान लीजिए नींद की ज़रूरत है 3 घंटे 4 घंटे, और उनको बिल्कुल भी नींद नहीं मिल पा रही है, तो उनका शरीर क्या है, ज़बरदस्ती ही ना काम कर रहा है। हमारा शरीर क्या है? इट इज़ अ मशीन। जिस तरह से हम लोगों को काम करना हम लोग बताएंगे वो करेगा, लेकिन कितना? अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने डाइट पर फोकस ना करें, प्रॉपर तरीके से अपने शरीर को रेस्ट ना दें। अब कोई कंटिन्यूसली आपको कहे कि प्रतिदिन आपको 3 ही घंटा सोना है, और आपको पता है कि कम से कम आपको 6 घंटे की नींद की आवश्यकता है, तो क्या आप कितना दिन टाल लीजिएगा? टाल लीजिएगा, चलिए साल, 2 साल, 4 साल, बूढ़ा जल्दी हो जाएगी। बालू पक गया सर, नहीं स्ट्रेस की वजह से सर, है ना? There are several causes of stress. For example, you are under stress
when you are worried about something, worried about your children, worried about the illness of your father, worried about your job security, or worried about your loans or similar things. भिन्न भिन्न प्रकार के ना हमें दबाव महसूस होता है माथे पर। और सोचिए एक ही साथ ना बहुत सारा होता है। हम लोग जितने भी हैं हम लोग सब EMI भरते हैं, ट्रू और नॉट सर? यस एक तो सर सबसे बड़ी चीज ये भी है कि हम लोगों का जीवन EMI हो गया। माने जो आना है लास्ट में जब देखिएगा 1000 बचा, 2000 बचा, उसमें पूरा महीना काटना है EMI। लेते टाइम देखिए आज के टाइम पे लोगों को देखेंगे कि आईफोन लेते हैं सर, आईफोन 1.5 लाख, 1,80,000 रुपये। करना तो वही है ना भाई, मेरा मोबाइल भी 15,000 का चल रहा है, वो भी वही बोलेगा, ऊपर से वो तो और महंगा पड़ता है। उसके प्ले स्टोर में हर कुछ खरीदिए, यहाँ तो फ्री में डाउनलोड हो जाता है। तय EMI पे ले लिए, कहा है तो मेरी सैलरी 50,000 रुपये, देखिए उसका 50,000 रुपये का सैलरी था, EMI बन गया 5,000 रुपये। चलिए कोई बात नहीं, मोबाइल ले लिया, जाके शीशा के सामने उसी तरफ से खींचेगा जिधर एप्पल का लोगो दिखे। दूसरी चीज फिर बोला कि अब गाड़ी खरीद ले, गाड़ी खरीद लिया, 13-14,000 रुपये उसका लगा। मैंने लास्ट में अगर करते करते देखेगा उसके पास 4,000 बचेगा, और उसको लास्ट में पता नहीं चला। और मान लीजिए खुदा ना खास्ते भगवान ना करे अगर उसको कुछ हो गया, तुम तो पूरे परिवार को कलंकित कर दोगे, तुम्हारी पत्नी बनेगी कहाँ से, तुम्हारे माँ पापा कहाँ से बने, है कि नहीं सर? और बहुत लोग ना इस वजह से भी सुसाइड कर लेते हैं कि अब तो मेरे ये कोरोना के टाइम पे बहुत ऐसा हुआ है, जॉब चली गई, अच्छे अच्छे कंपनीज, अच्छे अच्छे वर्कर्स की जॉब चली गई जिनकी सैलरी 1 लाख 2 लाख हुआ करती, तो वो कहाँ से भरे? हाँ, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए अगर हम लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं, अपना तरीका आपको अपने से खोजना पड़ेगा। नो वन इज गोइंग टू पॉइंट आउट कि आप इस तरह से कीजिए तो ऐसा मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, साइकाट्रिस्ट से मिलिए आप, वो आपको तरीका बताएंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे, देखिए प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी सर। जहाँ रहिएगा ना फिजिकल मेंटल दोनों का प्रेजेंस रहेगा। तीसरी चीज आपकी जॉब परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। जहाँ काम आप कर रहे हैं ना वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। लेस स्ट्रेसफुल, मोर एफिशिएंट। आप जब मेरे पास दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं बचा तो जगह खाली हो गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ें तो अब हम बनेंगे। चौथी चीज इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय ओवरऑल हेल्थ। सबसे बड़ी चीज देखिए, बोलते हैं ना पैसा तो बाद में बात है, पहले शरीर ठीक रहना चाहिए। शरीर ठीक नहीं रहा ना सर, कुछ नहीं, ये पैसा भी काम नहीं आएगा, पैसा साथ छोड़ दो। इतने बड़े बड़े सोचिए फिल्म स्टार्स गुजर ना गए, कोरोना में गुजर, उनका पैसा तो आता, वो काहे नहीं ऐसा जड़ी बूटी खोज लिया उस पैसे से जिसको खाकर वो अमर हो गए, चल दिए 35 साल 36 साल के। अच्छा वो सुशांत सिंह राजपूत, उनका अगर केस को अगर हम ले, वो बंदा सुसाइड किया, वो बंदा सुसाइड किया, क्यों? वो भी ना फिनेंशियल इसमें था, लॉस में। पैसा तो किसी का सगा नहीं होता सर। Disadvantages already we had discussed earlier. Stop shallow breathing. So create the habit of deep breaths. हम लोग कैसे सांस, अरे आराम से लो सांस, सांस कभी भी लीजिए ना तो एकदम टान कर, एकदम ऐसा लगे कि हम लोग चिलैक्स कर रहे हैं, नहीं रिलैक्स नहीं, चिलैक्स कर रहे हैं, एकदम डीप ब्रीथ होना चाहिए। हम लोग क्यों बोलते हैं बच्चों को बीच में कि अच्छा बेटा क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रीथ। जानते हैं डीप ब्रीथ लेने से क्या होता है? पूरा स्ट्रेस ऐसा लगेगा ना जा रहा है, कहीं गायब हो, कहीं गायब हो। विजुअलाइज एंड कम्युनिकेट या विजन। देखिए हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमारा सपना रहता है कुछ कि हम कुछ जीवन में करेंगे, हम अपनी पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटी को जब पहचान लेते हैं ना तो फिक्स अ ड्रीम इन आवर लाइफ। तो वो बोले थे ना कि जीवन में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। हम लोग अपने आप को वक्त ही नहीं दे रहे हैं। जैसा अभी मैडम ने कहा कि एटलीस्ट वी शुड गिव 15 to 20 minutes ऑन अ डेली बेसिस टू आवरसेल्फ सो दैट वी कैन टॉक कि भाई तू कर क्या रहा है, तू किस चीज़ के लिए बना है, तू खोज अपने आप को, एक्सप्लोर करो, तब तो कुछ अंदर से मिले आउटपुट। लेकिन एक्सप्लोर करने का टाइम कहाँ? क्रैक सम जोक्स। हाँ देखिए सर, क्रैक सम जोक्स।
do या वो face impression. impression tickle the child that you love. तो हम सभी करते हैं ना ये सारी चीज़ें। कोई बच्चा मिल जाता है तो हम लोग उसको खिला लेते हैं। हम लोग अपना किसी भी तरह से ना हम लोग चाहते हैं कि हम अपने दिमाग को शांत रख सकें, है ना, शांत हम लोग रख सकें। कभी कभी हम लोग जोक्स हम लोग करते हैं। हम लोग जब भी दोस्त लोग बैठते हैं तो नहीं होता है, कुछ हम लोग मजाक कर लेते हैं। तो हाँ, यस रवि सर, life is very simple. We are only making it complicated, to be very honest. Sir, our entire life revolves around 3 words. B for birth, D for death. And in between these 2 letters, a word C comes. C means your choice. एक तरफ हमारा जन्म है, एक तरफ हमारी मृत्यु है। इसके बीच में ना वो जो चॉइस है ना, वो आपको करना है कि किस तरफ आप लीजिएगा। अगर हम अपने आप को परेशान नहीं रखना चाहते ना, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि कोई भी धरती पे ऐसा ताकत नहीं बना है कि आपको आकर वो परेशान करे। और अगर आप सोच लिए कि नहीं हमको पूरे जीवन भर परेशान ही रहना है, तो वहां वैसा भी कोई आज तक दवा नहीं बना जो आपको शांत कर सके। चॉइस इज योर्स। और अगर आप चॉइस अच्छा बनाएंगे तो आप इफेक्टिव मैनर में आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज चॉइस अगर आपका खराब हो जाएगा तो यू विल बी गेटिंग exploited from all sides. Learn to say no. Yeah, you cannot do everything you are asked. हम में कमियां हैं, मनुष्य हैं तब तो। अगर हम परिपूर्ण हो जाएंगे, पूरे संसार में परिपूर्ण एक ही हुए, श्री कृष्ण, तो भगवान क्या है? परफेक्ट। तो हम लोग श्री कृष्ण है नहीं, है ना, उनके धूल बराबर भी नहीं है। तो हम लोग किसी को भी क्यों हर चीज में ठीक है सर कर देंगे, ठीक है कर देंगे। कोई अगर आपसे किसी भी चीज के लिए मदद मांगने के लिए आता है ना, आप सोचते हो कि मैं अपनी मदद वहां तक पहुंचा दूं। लेकिन ना बोलना सीखिए जीवन में, नहीं तो लोग ना आपकी वैल्यू कम करने लगे। सोचेंगे ना कि आप एकदम सबसे बेकार हैं, इसीलिए आप आखिरी आदमी तक अपनी मदद को पहुंचा। सच्चाई है। लोग आपको सोचेंगे कि एकदम नकारा है, बेकारा है, उसको जो सोचना होगा सोचेंगे, अच्छा कुछ नहीं सोचेंगे। अब काम भी ले लेंगे आपसे, आप पीठ पीछे आ रहे उसको तो छोड़ो ना, वो तो ऐसे ही घूमते हैं। बी थैंकफुल। जिस थाली में खाइए उस थाली में छेद कभी मत। कोई अगर आपको मदद किया है ना समय पे, आपसे उसको बाद में दुश्मनी भी हो जाए ना, लेकिन उस चीज के लिए उसको धन्यवाद जरूर ज्ञापन करते रहिएगा कि भाई आज ठीक है मेरे साथ उसका नहीं बन रहा है, लेकिन एक वक्त था जो हमको मदद किया था। ऑलवेज ट्राई टू बी थैंकफुल टू एनीवन हु हैज हेल्प्ड यू। Do nothing. That's right, folks. Do nothing at all. Close the door, open the window, have a seat, take a little break from your life. If your mind is racing, learn to meditate and just let that stress go. कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है ना सर, एक आध दिन ब्रेक ले लीजिए। अभी हम लोगों के पास 15 दिन ब्रेक है, 14 दिन। तो 1-2 दिन हम लोग भी अब ब्रेक लेंगे, घर जाइए आराम से। भगवान करे कि बारिश हो जाए, जब तेज बारिश हो ना, वहीं पे एकदम आराम से अपना पालथी मारकर बैठ जाइए और देखिए उन बारिशों। हम लोगों के कण कण में ऐसी चीजें बसी हुई है जिसको देख कर ना हम लोग अपने दिमाग के टेंशन को दूर कर। इनफैक्ट देखो ड्रम, अगर ड्रम अगर ड्रम बीच से अगर काट देना, मतलब उसका जो लीड होता है, ऊपर वाला ढक्कन जो होता है, उसको बीच से काट देना, ऐसा लगेगा ना कि दांत फाड़ के हंस रहा है। जब एक ड्रम जो कि नॉन लिविंग थिंग अगर वो हंस सकता है तो हम क्यों नहीं? सवाल तो ये भी है। पर कोई काम को हमको करना ही है, हंस कर करो चाहे रो कर, तो हंस कर ही करेंगे तो थोड़ा सा हमको टेंशन और कम ही होगा। लिसन टू म्यूजिक एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डू नथिंग, दैट्स व्हाई टुडे ABC अवेयरनेस बैलेंस कंट्रोल। चलिए अवेयरनेस बैलेंस कंट्रोल का नहीं छोड़िए, मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। आई हैव रिटन समथिंग
स्ट्रेस को अगर हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे ना, STRESS, S फॉर समवन, S फॉर समवन, T फॉर ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, 2 R फॉर रिपेयर, E फॉर एवरी, S फॉर सिचुएशन, and again the last S, solo. It means someone trying to repair every situation solo. अकेले ही कोई आदमी अपनी सारे सिचुएशंस को कि जो कि अनकंट्रोल्ड हो गया था उसको संभालने का प्रयास करता। स्ट्रेस ये होता, स्ट्रेस ये नहीं होता कि जब नहीं मन किया जाके दारू पी लिए, नहीं मन किया चलो आज सुसाइड कर लिए, नहीं हमको कुछ कर रहा है गाड़ी के सामने कूद गए, नहीं भैया। और हम लोग जो सुसाइडल तक वहाँ सिचुएशन तक पहुँचते हैं, हमें जन्म देने वाले हमारे माँ पापा, बनाने वाले भगवान, धरती पर हमारे सब कुछ पालन पोषण करता धरता हमारे माँ बाप, हम कौन होते हैं कि हम अपने उनके जीवन को हम खत्म करते हैं। आप तो करके निकल जाइएगा, बड़ा सा गड्ढा खोद करना जाइएगा अपने माँ बाप के लिए कि जो भी आदमी आएगा और उसमें कचरा डालकर चला जाएगा। कचरा इंसान माँ बाप का बेटा को इतना टॉर्चर किया कि बेटा फंदा लगा कि आप दूसरा कारण, लेकिन बदनाम होंगे आपके माँ बाप। जीवन में हंसी मजाक हमेशा करते रहना चाहिए। इवन मैम टुडे आई एम टेलिंग यू एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। जैसे मैं कभी कभी पीछे जाता हूँ, बैक साइड एंटायर बही लोग दे आर लिविंग, तो वट एवर दे आर ईटिंग ना, तो आई एम मेकिंग फन ऑफ देम, आई एम मेकिंग मिमिक्री। जैसे कभी किसी दिन वो लोग अंडा करी खा लेते तो आई ऐसे लाइक अंडा करी, आलू चॉप, आई डू लाइक दैट, वट एवर दे आर ईटिंग ना, आई एम मेकिंग मिमिक्री ऑफ दैट। उन लोगों को ही चिढ़ाता हूँ कि वो सब पीछे बैठे हो, वो सब बड़ी हो, and whatever they are eating, they all are bringing one tray of the entire egg tray. तो वो लोग कुछ भी खाते, मैं पूछ लेता हूँ साइड से, उसमें से कोई भी खाते हैं तो मैं पूछ लिया, तो जो जो पार होगा ना मैं उसके सामने बोलते था अंडा आलू चॉप आलू। तो ABC स्ट्रेस, ये फॉर अवेयरनेस। अवेयरनेस हम लोग क्या है कि जो हमारे आसपास कुछ हो रहा है ना, कम से कम उस चीज को ना हम लोग जाने। हम कहीं बैठे हुए हैं और बगल में कोई मर गया, कौन सा अवेयरनेस है भैया? मतलब वी हैव टू टेक अपडेशन, जो हमारे आसपास जो कुछ भी घटनाएं घट रही है हमें उस पर नजर बनाए रखनी है, उसको हमें देखना। बी फॉर बैलेंस। बैलेंस देखिए, एक अच्छा उदाहरण एक पति दे सकता है कि कहा भी गया है कि इफ अ मैन सेज सॉरी व्हेन ही नोज दैट ही इज रॉन्ग, that means the man is wise, he is honest, है ना? But if a man is saying sorry when he knows that he is not wrong, unfortunately he is a husband. It's fact. It is a fact. तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ बैलेंस की बात करें तो many a times हम लोग देखते हैं आज के टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, शादी अगर आपकी हुई, माँ कहेगी पल्लू का हवा लगा मेरा बेटा ये अलग हो गया, पत्नी कहेगी माँ ही इसका कान भरते रहती है मेरी सासू। आपको बैलेंस अब कैसे करना, देखिए यहाँ बैलेंस कर लिया ना तो जीवन में हर जगह में आप बैलेंस कर लेंगे सर, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत तो आपको जड़ से ही होगी ना सर। तो यहाँ पर आप अगर हम बैलेंस नहीं कर पा रहे तो करिए क्या? मम्मी जब कोई पूछे बहू कुछ बोल रही, नहीं माँ बहुत सीधी और उल्टा तुम्हारे बारे में पढ़ाई ही कर, हाँ मैनेज हुआ। पत्नी जब पत्नी के पास हाँ कुछ बोल रही है, बोल रही थी कि तुम बहुत अच्छी मिली हो, मैंने उनका किस्मत था कि तुम अच्छी मिल गई, दोनों जगह मैनेज हो गए, माँ भी खुश पत्नी भी खुश, बैलेंस हो गया जीवन। आपको शांति से खाना पीना मिलता रहेगा, भोजन पानी तो चाहिए। सी फॉर कंट्रोल, सर हम लोग कंट्रोल। मेनी टाइम्स इट हैपेंस, समटाइम्स इट इज बेटर दैट नो नीड टू रिप्लाई। मैं अभी आपको क्या कहा था शुरुआती में कि इट इज नॉट योर यू कैन से स्ट्रेस दैट किल्स अस। वो स्ट्रेस नहीं है जो हमें मार रहा है, हम किस तरह से उस पर ओवर रिएक्ट कर जा रहे हैं ना, उसकी वजह से हमारी मौत हो जाती है। अब मान लीजिए कि हमको कोई 4 गाली दिया, ठीक है 4 कुछ हमको बात सुनी, मैं वहां पर चुप रहा। और अगर आप लोगों को भगवान पर भरोसा ना, कभी किसी को पलट कर जवाब मत दीजिएगा बेटा, कभी नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि
भगवान के पास जो इतना बड़ा लाठी रखे है ना, वो लाठी जब चलता है ना तो मुंह से बकार नहीं निकलता। मतलब आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हो सकता है थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, है ना। और हम लोग सभी को जानते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा मिठाई आम खाएंगे, सब कच्चा आम खाएंगे। हो गया। नाउ स्ट्रेस रिडक्शन मेथड, सी सर कहा सर, क्रिएटिव इमेजरी, थॉट स्टॉपिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इसको कर सकते हैं आप। उधर जाते हैं उधर आराम से मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। Proper nutrition, that is very Relaxation, that is called quiet environment, passive attitude, comfortable position. कंफर्टेबल पोजीशन, नहीं, comfortable position is there sir, नहीं कुछ हो रहा गर्मी में, जमीन से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। वही तो बोलने का। नीचे से जाना, बायोफीडबैक, मेडिटेशन, टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। यस, अच्छा सवाल है कि टाइम कैसे मैनेज करें। 24 घंटा जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास भी 24 घंटा है, और हम लोग जैसे बेरोजगारों के लिए भी 24 ही घंटा है ना। तो आखिरकार वो वहां तक पहुंचे कैसे, और हम लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर। यू हैव टू फाइंड आउट कि उनकी डेली हैबिट्स क्या क्या है। कुछ आदतें ना आपको बना देंगी, कुछ आदतें आपको एकदम समाप्त कर देंगी। फिर यहाँ पर बात आती है चॉइस की, हम किसको पकड़े। तो अच्छाई को पकड़ेंगे, अच्छाई को पकड़ेंगे तो अच्छा होगा हमारे साथ। और टाइम को अच्छे से जिस दिन आप लोग मैनेज करना सीख लीजिएगा ना जीवन में, उस दिन से आपको स्ट्रेस को समझिए कि वो गायब हो जाएगा आपके दिमाग से। इसलिए क्योंकि हम अपने आप को, हमको पता है क्वेश्चन पेपर हम लोग जब लिखते हैं, कोई आज 10th का बंदा अभी 3 घंटे का पेपर लिखने के लिए जाएगा, उसको हम लोग इतना यहाँ पे रगड़ के ना उसको स्पीड बढ़ा देंगे कि 2 घंटा 45 मिनट में वो कंप्लीट कर। सर देखिए फ़ायदा क्या होगा। पहला बात, एक भी क्वेश्चन तो छूटा नहीं सर उसका। दूसरी चीज़ कि वो टेंशन फ्री भी रहेगा कि अरे मेरा तो पेपर पूरा क्लियर है। कितना भी खराब मार्क्स आएगा बोर्ड में तो 70 से नीचे को नहीं आएगा 80। प्लस उसके पास ना 15 मिनट वो एडिशनल टाइम मिल गया ना कि वो अपने कॉपीज को ना बार बार, एक बार 2 बार चेक कर सके, मिस्टेक्स को और ढूंढ सके। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा सर। और जो वक्त का कदर नहीं किया है, वक्त उसका कदर कभी जीवन में नहीं कर पाया। सो एंजॉय योर लाइफ एज इट कम्स एंड ऑलवेज बी हैप्पी। जैसा आ रहा है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए। हाँ देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहे। अच्छा और एक बात हो सकता है, कुछ लोगों को मैं अभी पूरा करूँ, ज़्यादा जिस दिन आप लोगों को घमंड होने लगे, अरे हम ही सर्वे सर्वान हैं, तो एक बार शमशान घाट को आइएगा, आपसे बड़े बड़े वहाँ पर राख बनकर लेटे हुए हैं। हम और आप तो कुछ नहीं है। हम लोग कुछ जलाएगा तो ना, हमको तो जलाएगा तो मुश्किल से आधा घंटा में जलाएगा। ये नहीं। तो कंक्लूजन, स्ट्रेस प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन। द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन stress in America found that 1/3 of the people in United States report experiencing extreme। देखिए, देख लीजिए परिस्थिति, 1/3 जो है उनका आदमी जो है परेशान है पूरा। अच्छा आज का सबसे बड़ा ना एक प्रॉब्लम और है सर कि स्ट्रेस का सबसे बड़ा मैं रीजन समझता हूँ ये मोबाइल फोन। यस, कोई भी अच्छा समाचार, बुरा समाचार सब इसी से मिलना, सब कुछ आपको इसी से मिलना। प्लस हम लोग ऐसा चीज देख लेते हैं ना उसमें जो हम लोगों को भयभीत कर देता है, अंदर से झकझोर देता है। हम लोग एक्चुअली उस हैबिट में नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ देख लिए, परेशान हो लिए। मुझे तो लगता है मैडम कि सारे रेस्टोरों में ये ना एक नोटिस घुमवा देना चाहिए कि अगर आप लोग, और वहाँ पे छोटा छोटा का जेल टाइप का, वो हर टेबल पे जहाँ पे फैमिली खाने बैठते हैं ना, वहाँ पे छोटा छोटा टेबल वो जेल टाइप का बना दें, जिसमें हम लोग चूहा पकड़ते हैं। उसी में ना जब आप लोग आइए मोबाइल उसमें डाल दीजिए, और वहाँ पर एक नोटिस लगा दीजिए क्या कि मोबाइल न चलाने पर अतिरिक्त 10% की छूट, 10% डिस्काउंट। कम से कम आज परिवार एक साथ बैठकर मिलेगा तो बात तो करेगा, नहीं तो देखिएगा माँ उधर बैठी है, बेटा उधर बैठा हो कार्टून देख रहा, अब पापा उधर। Even on the dead bodies they are taking selfies. हाँ ये सेल्फी, अरे मेरी दादी चल गई, हाँ मेरी मामी चल गई, अरे पापा मम्मी चल गई। correct. So that was all about the stress management. So I will be
टेकिंग अ प्रॉमिस फ्रॉम यू ऑल कि जब तक हम लोग जहां कहीं भी रहें, डजेंट मैटर, जितना हो सके अपने आप को ना एकदम रिलैक्स मूड में रखने का प्रयास कीजिए। और जीवन में ना एक दोस्त ऐसा अवश्य बनाइएगा जिसके साथ आप अपने जीवन का हर सुख दुख सब कुछ बांट सकें। बशर्ते सामने वाला देख लीजिएगा, परख लीजिएगा, धोखा देने वाला ना हो, क्योंकि बेटर इट इज अ बेटर मदर। इट इज अ मदर। मतलब माँ को ही बताइए, लेकिन माँ को बहुत कुछ नहीं बता सकते आप। पापा से तो और नहीं। Then better you talk to some toddler because he will not understand. अब वो समझेगा भी नहीं बेचारा। अब वो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। वो कोई बोलेगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा जरूर, जहाँ पर ना देखिएगा वो बटर हम लोग देखते हैं ना, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हम लोग को बटर लगाने के लिए जब बेल्ट देता है तो वो नाइफ हमें प्रोवाइड करता है, तो ऊपर से हम लोग जो लगाते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो समझ जाइएगा जहाँ बटरिंग हो ना बेटा, पीछे में कहीं ना कोई चांसी लेकर खड़ा हो, ध्यान से। So that was all about my stress management. Hope you all have enjoyed this session. Thank you very much.